here with today's virtual session for physics. Up till now we have discussed about work done, the conditions of work done, the concept of energy and how the concept of energy change is associated with the work done. We have discussed about the types of the mechanical energy and their different forms as well. Today we will be proceeding with the topic further with this new topic, that is principle of conservation of energy. So in order to proceed with today's class, let's start. This principle says that energy can neither be created nor be destroyed, however it is converted from one form of energy to another. From this principle, we can easily understand that for the work to be done, the energy change should be there. And we have already discussed this, that energy change means the gain or the loss of particular form of energy. For any work to be done, कोई भी काम होने के लिए, you know that work done is equals to energy change. The energy change must be there. तो कोई भी न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड, ना ही द प्रीवियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड. हाउएवर द प्रीवियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी कन्वर्जन कंटिन्यूज अंटिल द वर्क इज टू बी डन. आपको ये बात पता है कि when work is to be done the energy changes there. तो एनर्जी चेंज में ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि फॉर द वर्क टू बी डन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर नीडेड एंड दोज डिफरेंट फॉर्म्स आर बेसिकली नॉट क्रिएटेड. ऐसा नहीं है कि कोई नई फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है. बेसिकली द न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज बेसिकली ओरिजिनेटेड, इज बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि एनर्जी चेंज इन फिजिक्स ऑलवेज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज. तो एनर्जी चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनर्जी या गेन और लॉस of energy. When any new form of energy is gained, the previous form of energy is lost, or we can say that the loss of the previous form of energy is equal to the gain of new form of energy. So I hope it's clear that no new energy is created and no previous energy is destroyed. However, energy is transformed from one form to another. एंड एट एवरी स्टेज ऐसा नहीं होता कि जो इनपुट एनर्जी है दैट इज टोटली कन्वर्टेड इनटू आउटपुट एनर्जी. यू नो दैट फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस या वाटर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज देयर. फ्रिक्शन whenever two mechanical surfaces are there, the friction occurs, and when one mechanical surface is in air or in water or any other fluid, then the viscous drag force occur. Due to the friction or the viscous drag force, this we have already discussed while we were discussing the concept of friction in dynamics, that energy losses in the form of heat energy occurs due to friction or viscous drag force. So at every stage of the energy change, the previous form of energy is transformed into new form of energy, and at every stage due to friction और विस्कस ड्रैग. अगर दो मैकेनिकल सरफेस हैं तो फ्रिक्शन होगा, अगर सरफेस एयर या वाटर में है तो विस्कस ड्रैग होगा, एंड बोथ ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विस्कस ड्रैग सम एनर्जी इज लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट एज हीट एनर्जी. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये आप स्लाइड में इजिली देख सकते हैं कि output energy, what will be the output energy, the new form of energy will be equal to the input energy, the yani the previous form of energy, the initial form of the energy from which the energy conversion has started. Output energy is not equal to the input energy, is not purely equal to the input energy, because at every stage
of transformation of energy, some of the energy is also lost into the environment as heat energy. तो हम ये कह सकते हैं कि output energy is equals to output energy यानी new form of energy is equals to input energy plus lost energy. अगर हम lost energy और input energy को add करें तो we'll get the output energy. एंड लॉस्ट एनर्जी, क्यों एनर्जी लॉस्ट होती क्यों है इन्वायरमेंट में? इट इज लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन और द विस्कस ड्रैग फोर्स. फ्रिक्शन कब होगी, विस्कस ड्रैग फोर्स कब होगी, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड द लॉस्ट एनर्जी इज यूजुअली majorly in the form of heat energy. So I hope the principle of conservation of energy is clear to you, that no new form of energy is created nor the previous form of energy is lost. However, the previous form of energy is converted into new form of energy, and at every stage of energy conversion some energy is also lost into the environment as heat energy. And why the energy loss occur? Due to friction or viscous drag force. Now we'll be looking at different examples, different scenarios where we'll be looking at the energy conversion. The first example is diver on diving board. When we'll be discussing, when we'll be doing the past paper questions ना, तो आप देखेंगे कि in P1 MCQs आपको इसी तरह के different scenarios given होते हैं जिसमें आपको right energy conversion जो है वो mention करना होता है. अच्छा, for mentioning the energy conversion you first need to list the activities. You first need to list the activities for a given task. यानी अगर वो बोल रहा है a diver on a diving board, तो अब आप बताइए if a diver is standing on the diving board, अगर ये given होता a diver climbing on the diving board, तो आप कहाँ से start करते कि पहले diver climb करता, फिर diving board पर वो walk करके आता, फिर उसके बाद diving बोर्ड पर वो जंप करता और जंप करके फिर वो पूल में जो है वो स्प्लैश कर जाता. अभी उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है? अ डाइवर ऑन द डाइविंग बोर्ड, यानी अ डाइवर हैज ऑलरेडी क्लाइम्ड अप द डाइविंग बोर्ड. तो अब क्या होगा? अ डाइवर स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड, तो क्या होगा? ही स्टार्ट विद द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. ऑब्वियसली केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म है CPE. हमें इस तरह से ये देखिए, ये इस एग्जाम्पल के नीचे जैसे आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, एनर्जी कन्वर्जन हम एरो से शो करते हैं, इसी तरह से हम एनर्जी कन्वर्जन लिखते हैं. ठीक है. अब डाइवर जो है वो क्लाइंब कर चुका है, तो पहले वो क्या करेगा? वो स्ट्रेट वॉक करेगा डाइविंग बोर्ड पर, और स्ट्रेट वॉक करने के लिए वो कौन सी एनर्जी यूज करेगा? ऑब्वियसली द एनर्जी स्टोर्ड इन हिम. और आपको पता है कि द स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. सो ही स्टार्ट फ्रॉम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू विच ही वॉक ऑन द डाइविंग बोर्ड. जब वो डाइविंग बोर्ड पर वॉक करेगा, डाइविंग बोर्ड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लेवल बोर्ड है, तो द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी विच इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन. उसके बाद जब वो एज पर आ जाएगा डाइविंग बोर्ड के, तो वो क्या करेगा? वो जंप करेगा. जब वो जंप करेगा तो आपको पता है कि डाइविंग बोर्ड जो होता है वो इलास्टिक होता है, क्योंकि जब वो जैसे ही डाइवर जंप करता है तो उसमें इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. आपको पता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेचिंग और द कंप्रेसिंग ऑफ इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. और उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से फिर वो डाउनवर्ड जो है वो टुवर्ड्स पूल जंप करेगा. अब जो वो डाउनवर्ड जंप कर रहा है तो हाइट लॉस हो रही है. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब हाइट गेन होती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है, और जब हाइट लॉस होती है तो काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, क्योंकि अब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट पाथ. तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसके बाद फिर वो वाटर में जाके स्प्लैश कर जाएगा.
जिसकी वजह से जाहिर है जब वो वाटर में स्प्लैश किया तो हिज बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर, तो विस्कस ड्रैग फोर्स की वजह से हीट एनर्जी प्लस जब वो वाटर में स्प्लैश किया तो सम साउंड एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस। तो क्या क्या एनर्जी कन्वर्जन हुई? ही विल स्टार्ट विद द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी विद विच ही विल वॉक ऑन द डाइविंग बोर्ड, तो द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर एट द एज ऑफ द डाइविंग बोर्ड ही विल जंप, तो जंप से इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होगी डाइविंग बोर्ड पर, तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद जब वो डाउनवर्ड जंप कर रहा होगा उसकी हाइट लॉस होगी, तो अगेन आप ये कहेंगे कि मोशन हो रहा है, तो द गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और फिर जब वो वाटर में स्प्लैश कर जाएगा तो हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। वाई हीट एनर्जी? ड्यू टू विस्कस ड्रैग फोर्स, और साउंड एनर्जी क्योंकि ऑब्वियसली जब स्प्लैश करेगा तो some sound will also be produced. So this is how you need to do the energy conversion. ये first example है, a diver on the diving board. We will discuss some more example like this ताकि आप समझ सकें कि how the energy conversion is to be stated when a particular example is given to you. तो आप देखें यहाँ पर कोई भी new form of energy जो है वो क्रिएट नहीं हो रही, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनिशियली केमिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो ट्रांसफॉर्म हुई काइनेटिक एनर्जी में, देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, देन अगेन काइनेटिक में, देन हीट एंड साउंड एनर्जी में। और इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी इन अ गिवन एग्जाम्पल। इफ यू इनलिस्ट द एक्टिविटी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द एनर्जी on that particular stage of the activity. Okay, now let's proceed with the next example. Proceed towards the next example. The next example is hammering a nail or knocking a nail into any word or anything into a wall. अच्छा, अब आपको nail किसी भी चीज में नेल हैमर करने के लिए आप क्या करेंगे? यू विल टेक द हैमर, यू विल रेज द हैमर टू अ पर्टिकुलर हाइट। तो आप रेज कैसे करेंगे हैमर को? अगेन यू विल स्टार्ट विद द स्टोर्ड एनर्जी इन योर बॉडी, तो स्टोर्ड एनर्जी को आप कहेंगे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। विद द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी यू विल रेज द हैमर। जब आप हैमर को रेज करेंगे टू अ पर्टिकुलर हाइट तो कौन सी एनर्जी गेन हुई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप हैमर को ड्रॉप करेंगे इनटू द नेल। अब जब आप ड्रॉप करेंगे तो हाइट लूज हो रही है, जब हाइट लूज होगी, जब हाइट लूज होती है तो कौन सी एनर्जी गेन होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और जब हैमर को हिट करेंगे तो हिट करने से ये देखिए दो मैकेनिकल सर्फेसेस रब होंगे, द सर्फेस ऑफ द नेल एंड द हैमर। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी एंड सम साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो क्या एनर्जी कन्वर्जन हो गया? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जिससे आप स्टार्ट करेंगे with which the a hammer is raised to a particular height, so the gravitational potential energy is gained. Then the hammer is dropped, so the kinetic energy is gained, and then it will hit the nail, due to which the heat energy and sound energy will be gained. तो अगर आप देखें कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज गेन्ड, और इट इज इक्वल टू द लॉस। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी और काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। फिर काइनेटिक एनर्जी लूज होगी और हीट एंड साउंड एनर्जी गेन होगी। तो व्हेन एनी न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी इज originated, is transformed from the previous form of the energy, so there is a gain in the new form of energy and there is a loss in the previous form of energy. और हर energy change, हर stage of energy change पर some heat and sound energies, some heat energies also produced as a lost energy due to friction, and that lost energy is lost to the environment. ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
Now the next example is burning of fuels. Fuel may be a wood, a coal, oil, anything. तो आपको पता है कि ये बात हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी फ्यूल स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट होगा. उस केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से जब वो फ्यूल बर्न होगा तो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम एनर्जी कन्वर्जन लिखते हैं इन डिफरेंट सिनेरियोज. और हर स्टेज में ऐसा नहीं है कि द इंटायर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. सम एनर्जी विल आल्सो बी लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट एज वेल. और क्यों एनर्जी लॉसेस होते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू विस्कस ड्रैग फोर्स. और किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एज वेल. ओके. Now we look at the energy conversion in the production of electricity. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होती है? देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर स्टेशन लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, coal fired power station, the power station run by the windmills, the power station run by geothermal energy, the nuclear power station. तो होता क्या है? एनर्जी जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होते इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है तो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी पावर स्टेशन? देयर इज अ boiler in which some water is there. When the water is boiled in a boiler, the steam is produced. उस steam energy से जो turbines होते हैं वो move होते हैं. तो जब turbine move होते हैं तो वो जो heat energy boiler में produce होती है steam के produce होने से, वो heat energy turbine को move करती है. जब turbine move होता है तो the heat energy is converted into obviously kinetic energy, क्योंकि आपको पता है कि the energy due to motion, और motion में हर तरह का मोशन आ जाता है. ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, इन सब में जो है काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो व्हेन द टरबाइन इज मूव्ड ड्यू टू द हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम, तो द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन. टरबाइन के मूव होने से जनरेटर स्टार्ट हो जाता है. जनरेटर स्टार्ट होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो हर पावर स्टेशन में एक बॉयलर होता है, उसके साथ टरबाइन होती है, फिर टरबाइन से जनरेटर स्टार्ट होता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनर्जी जनरेशन. नाउ इफ इट इज कोल फायर्ड पावर स्टेशन, कोल फायर्ड पावर स्टेशन का मतलब है कि द फॉसिल फ्यूल दैट इज यूज्ड इन द पावर स्टेशन इज कोल. जैसे कि ये आपको अपने राइट साइड पर जो एक्सट्रीम राइट पर जो पावर स्टेशन नजर आ रहा है, दैट इज कोल फायर्ड पावर स्टेशन. ये आप देखें, ये यहाँ पर कोल है. तो किस एनर्जी से स्टार्ट होगा? कोल कोल फ्यूल है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उससे हम स्टार्ट करेंगे. तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से जो बॉयलर में वाटर है वो हीट होगा तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. जो हीट एनर्जी की वजह से जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो टरबाइन को रन करेगी. तो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. टरबाइन के रन करने से फिर जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा. तो जनरेटर स्टार्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. तो कोल फायर्ड पावर स्टेशन में क्या होगा कि पहले कोल बर्न होगा, यानी कोल बर्न होगा तो कैसे बर्न होगा? विद द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द कोल. कोल के बर्न होने से वो बॉयलर में जो वाटर है वो हीट अप होगा, जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस होगी, यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. उसकी वजह से टरबाइन जो है वो मूव होगा. तो हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. टरबाइन के मूव होने से जनरेटर स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ टरबाइन एंड विच इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द जनरेटर विल स्टार्ट.
अब आप इसके नेक्स्ट जो इसके बिसाइड जो आपको पावर प्लांट नजर आ रहा है दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन क्या करता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये करता है कि द हाइड्रो मीन्स वाटर, तो द वाटर स्टोर्ड इन डैम और रिजर्वायर इज रेज्ड टू अ हाइट। ठीक है, जब वाटर रेज होगा एक पर्टिकुलर हाइट पर तो इट विल गेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर ऊपर से जब वाटर फ्लो होता है इनटू टरबाइन, तो वो टरबाइन को जब वो प्रेशर से वाटर फ्लो होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है और टरबाइन मूव करना शुरू करता है, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाती है। जाहिर है वाटर जब यूज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। काइनेटिक एनर्जी टरबाइन मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। काइनेटिक टरबाइन के मूव होने से जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द वाटर इज रेज्ड टू द हाइट सो इट विल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर हाइट से जब वाटर फ्लो होगा टू द टरबाइन तो द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से टरबाइन मूव करेगा और टरबाइन के मूव करने से जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और याद रखिएगा कि हर इस पर सम ऑफ द एनर्जी विल ऑल्सो बी लॉस्ट एज हीट एनर्जी एज वेल ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली जब वाटर टरबाइन से टकराएगा तो ड्रैग फोर्स होगी, फिर टरबाइन मूव करेगा, पार्ट्स रब करेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो हम फ्रिक्शन और विस्कस ड्रैग को माइनस कर ही नहीं सकते, and due to friction and viscous drag force some of the energy is lost into the environment as heat energy। तो ये यहाँ पर तो हमने मेन एनर्जी कन्वर्जन लिखे में, लेकिन हर स्टेज पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस भी होगी एनवायरमेंट में इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और क्यों लॉस होगी? ड्यू टू फ्रिक्शन और विस्कस। तो आई होप दीज टू टाइप ऑफ द पावर स्टेशन इज क्लियर टू यू एंड आई होप द एनर्जी कन्वर्जन इन देम इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now moving on. Now the energy conversion using the power station containing windmills. अब windmill से क्या होगा कि the wind energy is used to turn the windmill. तो wind energy जब windmill को move करेगी तो it will be converted into kinetic energy और windmill के move होने से generator start हो जाएगा तो then it will be converted into electrical energy. तो windmill में क्या energy conversion हो गया? Wind energy is used to turn the windmill, so it will be converted into kinetic energy, due to which the generator will start and the electrical energy will be produced. Geothermal energy is the heat energy present at the underside of the earth. अर्थ के नीचे जो हीट एनर्जी होती है that is known as geothermal energy. Geo means earth and thermal energy means heat energy. तो heat energy from the underside of the earth is known as geothermal energy. ये forms of energy, ये terms आप already level 7 level 8 में पढ़ कर आए हैं। तो the heat energy from the underside of earth is used to heat up the water in the boiler. तो heat energy जो है जब water heat होगा steam produce होगी, उससे turbine move होगा, turbine move होगा तो heat energy will be converted into kinetic energy. turbine के move होने से generator start होगा जिससे electrical energy produce हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि geothermal power plant में क्या होगा, heat energy from the underside of the earth is converted into a kinetic energy when the turbine is moved, which is converted into electrical energy when the generator will start. So these are the energy conversion in the production of electricity. Electricity की production में हर power plant में जो parts involve होते हैं, जो main processes होते हैं, वो ये होता है कि boiler में water heat होता है। अब water heat करने के लिए if it is coal fired power station तो coal heat होगा, यानी chemical potential energy जो है वो use होगी water को boil करने के लिए। water boil होता है तो steam produce होती है, उस steam से turbine move करता है, turbine move
करता है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो जाती है, और टरबाइन के मूव करने से जनरेटर स्टार्ट होता है, एंड व्हेन द जनरेटर इज स्टार्टेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस, बिकॉज जनरेटर मीन्स द अप्लायंस, द आप ये कह सकते हैं द मशीन विच इज यूज टू जनरेट, विच इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जो मेन पार्ट्स होते हैं वो बॉयलर होता है, टरबाइन होता है और जनरेटर होता है. अगर कोल फायर्ड पावर स्टेशन है तो द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कोल इज यूज टू हीट अप द वाटर इन द बॉयलर. अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है तो जो आप वाटर को रेस करते हैं टू अ पर्टिकुलर हाइट, फिर उसको ड्रॉप करते हैं इनटू द टरबाइन, तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन, ड्यू टू विच द जनरेटर स्टार्ट्स एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस. विंड मिल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो द विंड एनर्जी इज यूज टू टर्न द विंड मिल, ड्यू टू विच the kinetic energy is produced, and the generator will start then and the electrical energy will be produced. और geothermal में भी ऐसा ही होता है कि heat energy from the underside of the earth is used to heat the water in the boiler. तो heat energy of the earth is converted into the kinetic energy when the steam turns the turbine, and due to which the generator starts and the electrical energy is produced. तो I hope it's clear कि energy conversion आपने कैसे बताना है हर स्टेज पर. और आप देखें कि ये जितनी भी न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं ये क्रिएट नहीं हो रही बल्कि ये ट्रांसफॉर्म हो रही हैं फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्म ऑफ एनर्जी. और अगेन एट एवरी स्टेज ऐसा नहीं होता कि द इंटायर इनपुट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इंटायर आउटपुट एनर्जी. सम एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ट टू द एनवायरमेंट एज वेल इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. एंड वाई द एनर्जी लॉसेज अकर? ड्यू टू फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग फोर्स. Now, there are some examples for you to try it out. You need to write the energy changes in each one of them. A cyclist riding a bicycle up the hill. An object released from the catapult. Catapult is bow and arrow hitting the target. To switch on the filament lamp connected to the battery. These are three different examples. You need to write the energy changes in each one of them. Okay. Now we'll be discussing the energy change in each one of them in the live session which will be conducted after this lecture. So kindly listen to the lecture carefully and then let me know in the live session okay, what are the energy changes in each one of them. So this is it from today's class. I really hope that you all would have understood the topic really well. Now inshallah see you soon in the next class. Till then, Allah Hafiz.